Just before starting, I just want to know, is there anyone who is joining today for the first time? कोई ऐसा है जो आज पहली बार join कर रहा है? You can just raise your hands. Okay, so if you're joining here for the first time, second, okay, we have 2 people and then 3 people. So we have 3 people over here who are coming for the first time. तो जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं, the videos are uploaded onto our YouTube channel where you can actually watch the videos, right? Yesterday's session got some error, right? We are fixing and we are uploading it on YouTube, as YouTube is not allowing us to upload yesterday's session because of some policy guidelines. That should not actually happen, but yeah, we are looking into it. Hope my screen is visible. The screen is glitching in your POV as well, or is it glitching for me only? Let me know if my screen is clearly visible or it's glitching. Okay, it's glitching. Let me just do it once again. And yeah, okay, so let's go ahead with it. For all the new people, we are there on YouTube and YouTube पे आप लोग follow कर सकते हो, and ultimately you will be able to get all the videos, right? Yesterday's videos would be coming today only, right? As we have just encoded the video in some other extension so that YouTube should not be able to properly check the guidelines or something, because sometimes जब आप थोड़ा practically approach करते हो तो YouTube guidelines के accordingly remove कर देता है चीज़ों को, right? So let's go over there and you will be able to see that right now Hackerswell पे आप जाते हो. This is the first session that we had about networking, right? So this is basically the networking session over here, and then next we would be coming up with the yesterday's videos, and yes, today's video is also on record, so it would also be shared, right? So you can just go on to the YouTube channel and you will be able to actually able to see all the videos and everything. We do post some other content, some other videos, some other shorts as well on YouTube as well, on Instagram as well, so you can get a lot of things. Plus WhatsApp का community channel का जो group link है, जो channel link है, वो ऑलरेडी कल ग्रुप पे शेयर हो गया था, राइट? किसी और को भी चाहिए हो तो बता देना. वी try to upload resources and free things over there, right? Okay, coming back to the topic, we have to learn about Linux, or Linux actually पढ़ने के लिए we need to go ahead and go into our Linux over here. So I'll simply open my VMware, जिसको हमने कल explanation में देख लिया था, and ultimately I'll be opening my latest version of the Linux. If you want to see the difference between two कि दोनों में क्या difference है, मैं दोनों power on करके दिखा देता हूँ. Both are working on 4 processors and taking 4 GB of RAM. 4 GB RAM देने का मतलब ये नहीं है कि वो 4 GB RAM हमेशा लेगा, राइट? जब उसको ज़रूरत पड़ेगी तब लेगा. लिनक्स कैन ऑल्सो वर्क ऑन 2 GB ऑफ रैम. तो अल्टीमेटली वो जब स्टार्ट होता है तो 1 GB 1.5 GB रैम लेता है, बट व्हेन यू आर डूइंग सम ब्रूट फोर्स और सम अदर अटैक तो रैम लेगा ज़्यादा, बट 4 GB से आगे नहीं जाएगा. सो अल्टीमेटली आई पावर ऑन दिस मशीन एज वेल, एंड आई पावर ऑन द प्रीवियस काली मशीन एज वेल, राइट? सो यू विल बी एबल टू सी बोथ द मशीन्स. राइट नाउ ये वाला भी मेरा बूट में है, एंड दिस काली लिनक्स इज ऑल्सो इन द बूट. सो 3 सेकेंड में ये बूट हो जाएगा. लेट्स ऑल्सो बूट इट एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे हमने बूट किया है, राइट? एंड बोथ द कालीज आर देयर. दिस इज ये इधर वाली मेरी पुराना एडिशन है, 3 years old edition that I love to use, right? Because it have bash and it have all the things, but हाँ कहीं ना कहीं because it's pretty old and the long term support has ended, so I'm not getting good updates for this particular version, so I have to so I was just testing the latest version of Kali as well, right? क्योंकि कई बार साइबर सिक्योरिटी में आपको पुराने टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जो डेप्रिकेट हो गए हैं आज की डेट में, एंड यू कैन नॉट फाइंड देम, बट पुराने काली के इंस्टॉलेशन में वो टूल्स आपको मिल जाते हैं, राइट? या सभी क्लासेस फ्री में हैं. सो अल्टीमेटली अगर आप डेली आ रहे हो तो यू विल बी एबल टू गेट द कंटेंट, एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाते रहो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो एकदम से, राइट? बिकॉज नहीं अगर आप बना रहे तो हो सकता है रिटेन ना कर पाओ आप इतना. ओके, सो अल्टीमेटली ओवर हियर यू कैन सी दैट द डिफरेंस. यहाँ पर जो थीम है उसमें फ़र्क है, एंड द थीम ऑफ द ओल्ड वन इज़ लाइक दिस, राइट? लेट मी जस्ट लॉग इन ओवर हियर इनटू माय अकाउंट, एंड इधर भी लॉग इन कर लेते हैं, राइट? सो ये नया इंस्टॉलेशन है. आईडी पासवर्ड इज़ काली, दैट्स इट.
एंड यू विल बी एबल टू सी अ लिटिल बिट डिफरेंस माइट बी, और क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा है, बट हाँ परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा है. द न्यू Kali is not as faster as the old version of Kali Linux, right? So new Kali Linux is getting heavier every update because of new tools and everything. यहाँ पे आप देख सकते हो, खोलते ही मेरे को जो है टर्मिनल दिख जाता है, बट उस वाले Kali के अंदर हमें कोई भी टर्मिनल नहीं देखने को मिलता है ऐसा. If I just full screen it, right, you can actually see both the editions over here, right? So this is my new Kali, जिसका बैकग्राउंड मैंने हटा रखा है, और यहाँ पर मेरी पुरानी Kali है. Again, these kind of wallpapers have been removed from the new Kali, right? So ultimately over here you can see the bash and the difference between bash and the difference between Z shell over here. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये bash है, right? And ultimately you can see that यहाँ पर जो input है ना वो directly इसके आगे से ही शुरू हो रहा है. But if I talk about Z shell over here and if I go like this, open a terminal, तो आप यहाँ पे आप difference देख सकते हो. The input is coming into the new line, ठीक है. यहाँ पे भी वही सेम लिखिए Kali, फिर आगे कुछ एक ये साइन दे रखा है. देन अगेन वी हैव अ थिंग रिटन एज Kali ओवर हियर, फिर एक टिल्ड साइन मेरे को दिख रहा है एंड अ डॉलर इज सीन. वही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी मेरे को सेम चीज़ दिखती है, Kali, देन बीच में @ और उसके बाद फिर से Kali, एंड देन अल्टीमेटली द टिल्ड साइन एंड बेसिकली द डॉलर साइन. सो यू आर एक्चुअली एबल टू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द एडिशंस, राइट. यहाँ पे ये ZSH काम कर रहा है और यहाँ पे जो मेरा शेल काम कर रहा है विच इज़ एक्चुअली bash. I really like to use bash and it's pretty much simple over here, right? So ultimately this is much better to use and much or I can say much faster or much efficient. But वहीं कहीं ना कहीं देखो, जहाँ पे मैं कहीं जाऊँगा, जैसे मैं ls करता हूँ, अगर मैं फिर से ls करूँ तो ये मेरे को कुछ भी नहीं दिखाएगा, right? मतलब I want to say that it won't show me the suggestion of the command या फिर वो command कैसे use होगा. But if I do the same thing over here in this version of Kali or if in this version of bash or sorry ZSH, you would be able to see मैंने एक बार ls टाइप किया, दूसरी बार s अपने आप आ गया, मैंने लिखा नहीं है, right? You can see it's in grey color, right? That means कि मेरे को suggest कर रहा है कि आप क्या ls लिखना चाहते हो, right? So it does that. जैसे यहाँ पे देखो मैंने c लिखा, d hack उसने वापस लिख दिया अपने आप because there is a hack folder and वहाँ मैं पहले जा चुका हूँ. तो इट्स रिमेंबरिंग ऑल द प्रीवियस कमांड्स एंड टेलिंग मी कि क्या आप ये वाला कमांड यूज़ करना चाहते हो, एंड इफ़ येस यू कैन जस्ट प्रेस द राइट एरो बटन एंड अल्टीमेटली आपका वही कमांड पूरा हो गया. बट वहीं अगर मैं बैश की बात करूँ तो बैश में मेरे को शायद ये फिर से लिखना पड़ता. जैसे मैं अभी पिछले फोल्डर में जाता हूँ एंड जैसे मैं यहाँ CD कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी सजेशंस नहीं आ रहे. तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द फीचर्स ऑफ बैश एंड Z शेल. डिफरेंट शेल हैव डिफरेंट फीचर्स एंड आज की डेट में लोगों को फीचर्स बहुत पसंद है. बट हम एक्सप्लेन करेंगे आज के टॉपिक को इन रिगार्ड्स विद दिस वर्जन कि बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ लिखी क्या है, बिकॉज यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिटन ओवर हियर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. क्योंकि ये बहुत फैंसी इन्होंने चीज़ें बना दी है इधर एंड अल्टीमेटली यहाँ पर बहुत अजीब तरीके से दिखाते हैं. बट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 3 साल पीछे वाली Kali के एडिशन में कि एक्चुअली में क्या होता है. बिकॉज देखो ये सब चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लगती है और आई नो कि हैकिंग में आने के लिए हैकिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्कल का साइन लगा लेते हैं या पर्पल इमोजी लगा लेते हैं या फिर एक फायर का सिंबल लगा करके घूमते हैं और उसके बाद उसके रील्स या शॉर्ट्स बना के म्यूज़िक डाल के बीट्स वाले उसको उसमें एक नॉर्मल सा टूल रन हो रहा होता है, कुछ नहीं हो रहा होता. इवन इफ़ यू गो टू यूट्यूब एंड यू सी द वीडियोज़ अपलोडेड ऑन टर्मक्स, राइट, जो टर्मक्स पे हैकिंग करते हैं, वो सारी वीडियोज़ आर अपलोडेड बाय फेलो इंडियन पीपल, नॉट एनी टर्मक्स वीडियोज़ कमिंग फ्रॉम एनी आउटसाइड इंडिया पीपल, बिकॉज दोज पीपल एक्चुअली वर्क डू साइबर सिक्योरिटी ऑन Kali द डेस्कटॉप एडिशन, राइट. आप टर्मक्स में भी वो देखोगे तो उन्होंने म्यूज़िक पूरा लगा रखा होता है, प्रॉपर वाइब होती है, लेकिन अंदर ही अंदर कमांड क्या लिख रहे होते हैं, LS को LE लिख रहे होते हैं एंड द कमांड सेज एंड द आउटपुट सेज दैट दिस कमांड इज़ नॉट फाउंड. एंड देन द पीपल हु आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम दोज वीडियोज़ आर अगेन टाइपिंग द सेम थिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ लर्निंग. वो भी LE टाइप करेंगे, उनको भी सेम आउटपुट मिलेगा विदाउट इवन नोइंग कि वो आउटपुट कहना क्या चाहता है, एंड दे विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन. So this is going a lot of a lot on YouTube, a lot on Instagram, and a lot on of social media platforms. This has to change and this has to work forward, because आज की डेट में शायद कोई सीखना नहीं चाहता,
पीपल थिंक दैट साइबर सिक्योरिटी इज़ ओनली हैकिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑल दीज थिंग्स, बट साइबर सिक्योरिटी इतनी नहीं होती दोस्त. साइबर सिक्योरिटी में बहुत कुछ होता है, राइट, और वो सीखना एक्चुअली कोर होता है. सो डोंट बी छपरी हैकर, राइट, एंड जस्ट ट्राई टू लर्न द बेसिक्स एंड ट्राई टू एक्चुअली देन डू द थिंग्स. सो अभी काली को कस्टमाइज़ करना बहुत ईजी है, बिकॉज काली इज़ बिल्ट ऑन द इन्वायरमेंट विच कैन बी कस्टमाइज्ड, राइट. जो इसका प्रॉपर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है काली का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जो जिस इन्वायरमेंट में बना है वो कस्टमाइजेबल इन्वायरमेंट है. सो यू कैन गो इनटू द सेटिंग्स एंड यू कैन कस्टमाइज योरसेल्फ फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. आप टास्क बार, टास्क मैनेजर, इसका हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो, कैसे क्या दिखेगा. एंड फॉर ट्विकिंग द शेल यू कैन यूज़ द टूल OMyZSH. OMyZSH. सो इस तरीके से टूल आता है, दैट कुड हेल्प यू. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर हम वापस आते हैं और वापस आकर के यहाँ पर समझते हैं इस चीज़ को, राइट. सो हियर वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई ये जो मेरे पास टूल है या फिर ये जो मेरे पास टर्मिनल है, इस टर्मिनल की विंडो में क्या लिखा है, ये क्या कहना चाहता है मेरे को, राइट. सो how can I basically understand the things written over here. तो देखो, ये समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि यार ये क्या है, राइट. सो दिस इज़ एक्चुअली द यूज़र नेम, राइट. ये क्या है, ये दिस इज़ आवर यूज़र नेम एंड यूज़र नेम मीन्स, ओके, सो वी गॉट yesterday's thing. So username क्या है? username basically कि आपकी काली का क्या नाम है, right? what user you are logging in with, right? So basically this means आपका user name क्या है, right? So ultimately user name जब हमें पता होगा तो we know that okay this is the person who is logging into this particular PC. and फिर ये hackers वाला क्या है? this is actually the name of the PC और actually Linux में इसको host name के नाम से जाना जाता है, right? होस्ट नेम. जब भी मैं देखो लिनक्स वर्ड का इस्तेमाल करूँ कि लिनक्स में ये हो रहा है, लिनक्स में इस नाम से जाना जाता है, तो समझ लेना कि दुनिया भर की सारी लिनक्स में इसको होस्ट नेम कहते हैं. जब मैं बोलूँ काली में, तो ये समझ जाना कि सिर्फ काली के अंदर ये चीज़ है और बाकी लिनक्सेस के अंदर ये चीज़ नहीं है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर. सो वी हैव दिस थिंग, राइट. सो यहाँ पे संचय लिखा है, दिस मीन्स द यूज़र नेम, वॉट यूज़र नेम हैज़ लॉग्ड इन. एंड देन उसके बाद यहाँ पर हैकर्स वाला है, जिसका मतलब है दिस इज़ द नेम ऑफ द PC और टेक्निकली लिनक्स में इसको होस्ट नेम कहते हैं, राइट. सो ये जो होस्ट नेम है, एक्चुअली यू कैन चेंज दिस होस्ट नेम योरसेल्फ एंड अल्टीमेटली जो पहला होस्ट नेम आता है वो काली आता है और जो यूज़र नेम आता है वो भी काली आता है. सो काली @काली, इस तरीके से वो चीज़ लिखी हुई होती है. @ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट टेल्स दैट ओके ये वाला जो यूज़र है ना, दिस पर्टिकुलर यूज़र इज़ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर होस्ट, राइट. आई डोंट नो वाई द मेकर्स ऑफ काली थॉट कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस सिंबल से, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट. सो दैट इज़ द थिंग. इवन यू कैन अंडरस्टैंड कि देखो लिनक्स हर जगह है और हैकर्स वाला का पूरा सर्वर भी अभी उबुंटू नाम की लिनक्स के ऊपर काम कर रहा है, राइट. नाउ यू नो इफ़ आई जस्ट शो यू ओवर हियर, राइट, बेसिकली कि अगर मुझे लिनक्स से कनेक्ट करना है, हैकर्स वाला की जो लिनक्स है उससे यू कैन नॉट कनेक्ट, ओनली आई कैन कनेक्ट, राइट, क्योंकि आई हैव बीन कनेक्टेड टू द सर्वर विद द प्राइवेट की, राइट. सो अगर मैं यहाँ आता हूँ, अगर मेरे को कनेक्ट करना है तो SSH नाम के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं. मैं विंडोज़ से कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मेक श्योर ये विंडोज़ का CMD है, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, HVadmin @hackersvilla, राइट. सो hackersvilla इज़ द डोमेन नेम. hackersvilla इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ माई कंप्यूटर, नेम ऑफ माई सर्वर, नेम ऑफ माई डोमेन, ठीक है. तो ये नेम ऑफ द डोमेन है और HVadmin इस कंप्यूटर के ऊपर बना हुआ एक यूज़र है, हैकर्सविला एडमिन, राइट. एंड अल्टीमेटली जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इट वुड डायरेक्टली कनेक्ट मी with the Ubuntu machine and I can do whatever I on my server. Again, you cannot do the same thing because वो directly बोल देगा कि भैया पब्लिक की नहीं है आपके पास, है प्राइवेट की नहीं है. So it just simply tells me कि आपके Ubuntu में अपडेट आ रखा है और Ubuntu जो है आपकी रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है, बट वी कैन नॉट रीस्टार्ट राइट नाउ बिकॉज अगर रीस्टार्ट किया तो पूरा सिस्टम, पूरा सर्वर, पूरा सब कुछ रीस्टार्ट होगा. अल्टीमेटली दिस वुड हैम्पर द SEO परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट, राइट. सो आप ये समझो कि देयर इज़ अ सिस्टम दैट इज़ रनिंग कंटिन्यूसली सिंस लास्ट 1.5 ईयर्स, राइट. एंड माइल्ड अपडेट्स के साथ वो सब कुछ काम कर रहा है और अभी मैं एक लिनक्स में कनेक्ट हो चुका हूँ, राइट. और जिस लिनक्स में मैं कनेक्ट हुआ हूँ वो भी बैश यूज़ कर रही है. अगेन यू कैन सी द सेम थिंग ओवर हियर. यहाँ पर पूरा ड्रॉपलेट का नाम लिखा है एंड अगेन ओवर हियर ड्रॉपलेट का नाम से मतलब हो गया बेसिकली यहाँ पर सर्वर का नाम लिखा है और वी हैव द होस्ट नेम एंड अगेन वी हैव द यूज़र नेम ओवर हियर. सो यू कैन सी द थिंग्स लाइक दिस. नो, दिस इज़ नॉट WSL, दिस इज़ जस्ट SSH क्लाउड, राइट. क्लाउड के ऊपर एक उबुंटू नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है डिजिटल ओशन के ऊपर, उसके अंदर पूरा हैकर्सविला का वेबसाइट है,
राइट, यू कैन सी द हैकर्सविला वेबसाइट ओवर हियर. इफ आई गो इनसाइड इट, सो यहाँ पे हैकर्सविला की पूरी वेबसाइट है, राइट, द होल थिंग ओवर हियर. इफ आई डिलीट एनीथिंग फ्रॉम हियर, वो लाइव वेबसाइट से डिलीट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज अ क्लाउड सर्वर जिसके ऊपर पूरी वेबसाइट चल रही है, बैकएंड वगैरह पूरा डेटाबेस इसी के ऊपर है, एंड अल्टीमेटली यू कैन सी ऑल द थिंग्स ओवर हियर, राइट. सो दिस इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स. एंड क्लाउड है तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो. यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम योर पीसी, यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम योर विंडोज, यू कैन कनेक्ट इट फ्रॉम योर एनीथिंग ओवर हियर, राइट. सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो कि जहाँ मैंने अभी कनेक्ट किया था वो एक्चुअली उबुंटू था, और यहाँ काली में भी बिल्कुल सेम तरीके से इनपुट मांगा जा रहा है, राइट. सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव दिस यूज़र नेम ओवर हियर एंड वी हैव द होस्ट नेम ओवर हियर. एंड ये क्या बताता है बेसिकली, काली @काली, मतलब ये पीसी में कौन सा यूज़र है, ये चीज़ डिस्प्ले होती है, राइट. उसके बाद दो चीज़ें हमारे पास और है. ये टिल्ड साइन ना सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बना है यहाँ पे, इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ मकसद है. इसका क्या मकसद है? टिल्ड साइन इज एक्चुअली द शॉर्टकट फॉर द होम फोल्डर ऑफ द यूज़र हु इज़ करेंटली लॉग्ड इन. ध्यान से समझना है इस बात को कि जो यूज़र करेंटली लॉग्ड इन है, राइट, जिस यूज़र ने फिलहाल लॉगिन कर रखा है, राइट, जो भी जैसे अभी क्या है, अभी संचय यूज़र ने लॉगिन कर रखा है, तो संचय यूज़र का होम फोल्डर फिलहाल टिल्ड साइन से डिस्प्ले किया जा रहा है, राइट. दैट मीन्स द लोकेशन /home/संचय, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है, दिस लोकेशन इज़ एक्चुअली रेफर्ड बाय अ टिल्ड साइन. तो मैं अगर इस लोकेशन के अंदर सीडी करूँ या फिर मैं इस लोकेशन के अंदर सीडी करूँ, वन एंड द सेम थिंग. मतलब आप ध्यान से देखो, अगर मैं किसी भी लोकेशन के अंदर चला जाऊँ, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी, यू आर गोइंग इनटू डिफरेंट डायरेक्टरी. तो यहाँ पे मैं हैक फोल्डर के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर जा कर के आप देखो, अगर मैं अगर मैं किसी और फोल्डर में चला जाऊँ, लेट्स से यूज़र, शेयर, nmap, राइट, स्क्रिप्ट्स, मान लो मैं एक ऐसे फोल्डर में चला गया, ठीक है, जहाँ मैं बहुत ज़्यादा अंदर हूँ. अब मेरे को डायरेक्टली वापस आना है. लेट्स से आई वांट टू कम बैक टू द होम फोल्डर ऑफ माइन. तो होम फोल्डर पे वापस आने के लिए या तो मैं ये पूरा लिखूँ /home/संचय, राइट, तभी वापस आ पाऊँगा. नाउ द पॉइंट इज़ कि इस तरीके से वापस अगर नहीं आना तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली टिल्ड साइन लिख सकता हूँ, प्रेस एंटर, आई एम बैक टू द होम फोल्डर, ठीक है. नहीं तो मेरे को एक एक फोल्डर पीछे जाना पड़ता है, या फिर शायद मैं डायरेक्टली संचय के होम फोल्डर में जाता, बट टिल्ड साइन से मैं डायरेक्टली आ पा रहा हूँ, बिकॉज टिल्ड साइन एक्चुअली मीन्स द होम डायरेक्टरी फॉर दैट पर्टिकुलर फोल्डर, राइट. और आप एक्चुअली अभी कौन सी डायरेक्टरी में हो वो देखने के लिए आप pwd कमांड का यूज़ कर सकते हो. सो pwd कमांड है, यहाँ का आउटपुट आता है /home/खाली. तो /home/खाली फिलहाल मेरे संचय यूज़र का होम फोल्डर है, राइट. अब आप बोलोगे कि सर ये संचय फोल्डर जो है, मतलब संचय यूज़र जो है, उसका होम फोल्डर का नाम काली क्यों है? तो इसका भी एक रीज़न है, दैट विल कवर अप इन द अपकमिंग 5 मिनट्स. तो बेसिकली यहाँ पे आपने टिल्ड साइन देखा, टिल्ड साइन एक्चुअली टेल्स द लोकेशन. नाउ जस्ट सी, अगर मैं रूट यूज़र बन जाऊँ, ठीक है, अगर मैं रूट यूज़र बन जाऊँ, इफ़ आई बिकम रूट, सो sudo root and let's say okay, sorry, su root, or simply we can just type sudo su and we can directly jump into the root. तो देखो मैं रूट यूज़र में आ गया. नाउ आई हैव बिकम रूट यूज़र. तो देखो जब रूट यूज़र बना हूँ मैं, अल्टीमेटली व्हेन आई हैव बिकम द रूट यूज़र, सो रूट यूज़र के अंदर मेरे को पूरी लोकेशन दिखा रहा है, टिल्ड साइन नहीं दिखा रहा है. इट्स द सेम टर्मिनल, आई एम इन द सेम लोकेशन, बट द पॉइंट इज़ कि अब देखो यहाँ पर /home/खाली इज़ नॉट एक्चुअली द होम फोल्डर फॉर रूट, राइट. इसलिए अब इसकी पूरी लोकेशन दिख रही है, राइट. तो अगर मैं अब टिल्ड साइन के अंदर सीडी करूँ, और मैं कहाँ सीडी किया हूँ वो देखने के लिए pwd, तो रूट फोल्डर का मतलब जो रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट का जो होम फोल्डर होता है वो /root के अंदर होता है. तो वो हमें देखने को मिल गया. इसके अंदर भी कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, राइट. सो वी हैव ऑल द थिंग्स ओवर हियर. इसका अपना डेस्कटॉप है, अपना डॉक्यूमेंट्स है, अपना डाउनलोड्स है, अपना म्यूज़िक है, जस्ट लाइक विंडोज़. 2 अलग अलग आप जो है यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, 3 यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, है ना. बचपन में करते थे, कंप्यूटर लैब में देखा होगा, कभी 2-3 यूज़र्स, एक एडमिन का यूज़र बना हुआ है, एक नॉर्मल यूज़र बना हुआ है. तो बिल्कुल वही सेम चीज़ है, यहाँ लिनक्स में भी ऐसी होती है. पॉइंट है यहाँ पर एक छोटा सा कि लिनक्स का एक प्रॉपर प्रिविलेज सिस्टम है जो समझना है हमें. प्रिविलेज सिस्टम क्या है कि सबसे ऊपर सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा भगवान जो है लिनक्स का, वो रूट है, ठीक है. इस भगवान के नीचे बहुत सारे ग्रुप आते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप आते हैं, और ये ग्रुप ना आप बनाते नहीं हो. आप जब एक यूज़र बनाते हो तो ऑटोमेटिकली उस नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है,
ठीक है। अब मान लो अभी हमारे इसके अंदर काली का एक यूज़र बना हुआ आया, तो ऑटोमेटिकली काली नाम का ग्रुप भी बन गया और इसके नीचे इसने बोल दिया कि काली नाम का यूज़र एग्जिस्ट करता है। अब इस काली नाम के यूज़र को मैंने रीनेम करके संचय कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे संचय हो गया। तो संचय है तो अभी भी काली के ग्रुप के अंदर ही है ना, तो अल्टीमेटली इसीलिए जो है उसका जो लोकेशन था वो स्लैश काली था, वो स्लैश संचय नहीं था। अगर मैं एक नया यूज़र बनाता संचय नाम का, तो अल्टीमेटली उसका ये जो मतलब यूज़र बनता वो भी संचय बनता और अल्टीमेटली उसका ग्रुप का नाम भी संचय बन जाता। ग्रुप का नाम आप बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट जैसे ही आप कोई यूज़र क्रिएट करते हो वो अल्टीमेटली ग्रुप का नाम भी बन जाता है और वो अल्टीमेटली उसका एक मतलब वो यूज़र नेम भी बन जाता है। तो आपको ग्रुप का नाम बाद में बदलना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि संचय अब इस संचय ग्रुप का नहीं काली ग्रुप का हो जाएगा। लेट्स से कि मैं कोई एक नया यूज़र बनाता हूँ और नया यूज़र का नाम मैं देता हूँ लेट्स से हेलो। अब मैंने एक हेलो नाम का नया यूज़र बनाया तो हेलो नाम का एक ग्रुप भी बन जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली होगा क्या कि मैं फिर बोलूँगा कि भैया हेलो यूज़र ना मैं हेलो के अंदर नहीं डालना चाहता, मैं काली के अंदर डालना चाहता हूँ, तो काली के अंदर हेलो नाम का यूज़र आ जाएगा एंड अल्टीमेटली फिर मैं इस ग्रुप को जो है डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करते हो। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, राइट। इसको कुछ इस तरीके से देखते हैं कि एक ही आपका रूट अकाउंट है, रूट अकाउंट के नीचे आपके ग्रुप्स है, लेट्स से G1, G2, G3 और हर ग्रुप में कुछ कुछ यूज़र हो सकते हैं, राइट। हर ग्रुप में कुछ कुछ यूज़र हो सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 में लेट्स से 2 यूज़र है U1 U2, ग्रुप 2 में जो है U3 है, ग्रुप 3 खाली है लेट्स से। तो हर अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग यूज़र्स हो सकते हैं और सबकी अपनी अपनी परमिशन है। अगर यूज़र 1 ने एक फ़ाइल क्रिएट करी तो इस फाइल की ना 3 परमिशंस होंगी। पहली परमिशन होगी कि भैया U1 क्या क्या कर सकता है, राइट। बेसिकली U1 के पास कितना एक्सेस है इस फाइल को यूज़ करने का, क्या U1 रीड कर सकता है। तो अल्टीमेटली U1 नई फाइल बनाई है तो U1 रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है उस फाइल को, ठीक है। फिर वो बोलेगा कि आपके ग्रुपमेट के लिए इस फाइल की क्या परमिशन है, मतलब U2 क्या क्या कर सकता है इसमें। तो मतलब पूरा का पूरा G1 के अंदर अगर 10 बंदे और होते हैं तो बेसिकली पूरा का पूरा ग्रुप क्या क्या कर सकता है। तो ग्रुप की अपनी परमिशंस होती हैं, ठीक है, कि आपका पूरा ग्रुप क्या क्या कर सकता है। अगेन यू कैन स्पेसिफाई कि आपके ग्रुप को आपको रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद फिर होता है कि अदर्स, एक परमिशन और होती है अदर्स, कि भाई बाकी के लोग क्या कर सकते हैं। मतलब ये U3, G3 ये जितने भी हैं, मतलब बाकी के ग्रुप बचे हुए, ये सब अदर्स में आते हैं। और इन अदर्स की भी परमिशंस को आप सेट कर सकते हो कि भैया आपके बाकी के लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट the privilege level is in particular Linux system। and ये जो प्रिविलेज सिस्टम है ना, ये प्रिविलेज सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक अटैक होता है प्रिविलेज एस्केलेशन। अटैक भी नहीं बोलूँगा, अटैक करने के बाद पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक होती है प्रिविलेज एस्केलेशन, जिसमें आप जब एक्सप्लॉइट कर जाते हो, किसी मशीन के अंदर चले जाते हो, फिर आप बेसिकली प्रिविलेज एस्केलेट करते हो। प्रिविलेज एस्केलेट का इंग्लिश में मतलब बहुत सिंपल है। प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ, परमिशन, कितनी आज़ादी है आपको, राइट। और उसके बाद एस्केलेशन, बढ़ाना, कितनी आज़ादी बढ़ा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा आज़ाद पंछी कौन है इस पूरे स्ट्रक्चर में, रूट, ठीक है, क्योंकि रूट है भगवान सबका, सबसे ऊपर बैठा है। और अगर गलती से आपको रूट एक्सेस मिल गया किसी वेबसाइट का, किसी सर्वर का, आप भगवान बन जाओगे उस सर्वर के, आप कुछ भी कर सकते हो। उसको आप जैसी रिपोर्ट करोगे सामने वाला आपको मुंह मांगी बाउंटी देगा, ठीक है। और हाँ, रूट यूज़र बनना और रूट यूज़र तक पहुँचना एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, एंड अल्टीमेटली इट वुड टेक यू अराउंड 3 to 4 years ऑफ बग बाउंटी एक्सपीरियंस टू एक्चुअली डू ऑल दीज काइंड ऑफ बग्स, जहाँ पे आप लिटरली रूट लेवल की परमिशन को एक्वायर कर पाओगे। बट उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और बहुत कुछ प्रिविलेज एस्केलेशन में देखना पड़ेगा। प्रिविलेज एस्केलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे प्रिविलेज एस्केलेट करोगे। अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेट करने के लिए, उसके लिए आपको लिनक्स में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जैसे हो सकता है U2 के पास U1 से ज़्यादा परमिशन हो, तो आप पहले U1 का एक्सेस आपने लिया, फिर आप U2 का एक्सेस लो, फिर U2 से शायद कोई वल्नरेबिलिटी जा रही हो जिससे आप U3 बन जाओ, तो आप U3 का एक्सेस ले लो। हो सकता है कि U3 के पास कोई वल्नरेबिलिटी हो, कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहा हो जिससे वो डायरेक्टली रूट का एक्सेस मिल रहा हो, तो आप यहाँ से फिर रूट का एक्सेस ले लोगे। तो ऐसे ना साइबर सिक्योरिटी में यही होता है, जब हैकर हैक करता है तो वो धीरे धीरे करके एक पर्टिकुलर रूट अकाउंट तक पहुँचता है, डायरेक्टली नहीं हो जाता। ऐसा नहीं होता कि आपने सिंपली वहाँ लिखा एक जगह पे जाकर ओके दिस इज दिस कमांड डाला और रूट एक्सेस मिल गया, ऐसा नहीं होता। जब भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैक होती है ना, एम्स जैसे हैक होता है और ये जितनी बड़ी कंपनीज हैक होती हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैक होते हैं, इनका सिंपल सा मुद्दा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिंपली एक कंप्यूटर हैक करेंगे, उससे दूसरा, उससे तीसरा, उससे चौथा, ऐसे प्रिविलेज एस्केलेट करते करते रूट तक पहुँचते हैं,
ठीक है। और ये लेटरल मूवमेंट बहुत आराम से हो जाता है, इसको लेटरल मूवमेंट कहते हैं टेक्निकल भाषा में। ये बहुत आराम से हो जाता है क्योंकि सब कुछ एक ही नेटवर्क, एक ही इंटरनेट, एक ही पर्टिकुलर वाईफाई या एक ही पर्टिकुलर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। तो बहुत आराम से आप लेटरल मूवमेंट कर सकते हो। और इसी को अगर आप अच्छे से सीख लोगे, यू विल बी वेरी स्किल्ड इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर ही आता है रेड टीमिंग भी कर सकते हो, रेड टीमिंग के अंदर भी आ सकता है। एंड अल्टीमेटली अगर बहुत अच्छे से सीखना है, सर्टिफिकेशन लेना है, तो OSCP का सर्टिफिकेशन होता है, प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह जिसको आती होती है विंडोज़ की और लिनक्स की, वो OSCP का सर्टिफिकेशन लेते हैं फिर जा करके। 1,40,000 का सर्टिफिकेशन आता है, बहुत महंगा है, बट या इट्स अ वेरी वर्दी सर्टिफिकेशन। तो आई वुड से 3-4 साल जॉब करने के बाद या कुछ भी साइबर सिक्योरिटी में करने के बाद, इफ़ यू हैव इनफ मनी, सेव योर मनी, गो फॉर OSCP सर्टिफिकेशन एंड यू विल बी वैल्यूड एट अ वेरी गुड रेट, राइट। मतलब आपको काफ़ी अच्छी कंपनी से ऑफर आने लग जाएंगे, राइट। So ultimately this is the thing and the point is कि this is how the technology works, right। एक पर्टिकुलर रूट अकाउंट है, उसके नीचे ग्रुप है और उसके नीचे यूज़र्स हैं, और जैसे ही आपको यूज़र क्रिएट करते हो तो उसका एक ग्रुप का नाम भी बन जाता है। देन यू कैन जस्ट सिंपली चेंज द ग्रुप और समथिंग लाइक दैट। ये सारा का सारा जो मॉडिफिकेशन है वो एक ही कमांड से हो जाता है, यूज़र मॉड कमांड से। यूज़र मॉड कमांड से आप उस पूरे यूज़र को डिलीट कर सकते हो, उस यूज़र के अंदर कुछ बदलना है वो बदल सकते हो, उस यूज़र का ग्रुप बदल सकते हो, उस यूज़र को रूट की कितनी परमिशन देनी है वो दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ द थिंग वर्क। अब देखो, रूट तो भगवान है ही है ना, रूट तो भगवान है लिटरली। बट क्या होगा जब U1 को भी कुछ ऐसा यूज़ करना हो जिसमें भगवान की ज़रूरत पड़ जाए? ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो U1 है या फिर मेरा यूज़र है संचय यूज़र, और संचय यूज़र को कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ जाए जो, जैसे आप मान लो कि रूट है ना, मतलब रूट की परमिशन चाहिए, वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे रूट की परमिशन चाहिए। तो बेसिकली ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में या तो आप बेसिकली रूट अकाउंट का एक्सेस लो, मतलब आप लिटरली रूट अकाउंट में जाओ और या फिर किसी बंदे को बोलो, जो भी आपका लिनक्स मैनेजर, सर्वर मैनेजर है, आप उसको कॉल करके बोलो कि भैया ये काम मेरा थोड़ा सा अटका हुआ है, ये करवा दोगे क्या? एक चीज़ ये हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो आपको अपनी थोड़ी सी परमिशन या फिर अपने थोड़ी सी पावर आपको मतलब उधार में दे देगा, ठीक है। मतलब रूट अकाउंट आपको अपनी पावर, अपनी भगवानों वाली शक्तियाँ आपको उधार में दे देगा और पूरी स्पेसिफिकेशन के साथ देगा कि आप ये कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, अगर ये करोगे तो मेरे को पता लग जाएगा। ये हर चीज़ लिनक्स में सेटल्ड होती है, ठीक है। जैसे ये रूट है, ये क्या करता है, ये एक फ़ाइल मेंटेन करता है, और कौन सी फाइल होती है, उस फाइल को sudoers की फ़ाइल कहते हैं, sudoers, राइट। और इस फाइल के अंदर उन अकाउंट्स का नाम लिखा होता है जिसको रूट के परमिशन या फिर रूट के पावर्स का एक्सेस है, राइट। जैसे संचय यूज़र हो गया, लेट्स से काली यूज़र हो गया, लेट्स से कोई और यूज़र हो गया, लेट्स से सारे ये जितने भी यूज़र्स हैं इस लिस्ट में, उनकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है कि कौन से यूज़र को कितनी परमिशन, कौन सी फाइल, क्या क्या टूल्स एक्सेस करने का यहाँ पर अलाउड है, और कौन कौन से फाइल्स एक्सेस नहीं कर सकता ये बंदा। हर चीज़ लिखी हुई होती है sudoers की फाइल में। अगर आप बेसिकली इस यूज़ करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज़ द कमांड sudo, ठीक है। सूडो कमांड जैसे ही आप यूज़ करते हो, काली को या किसी भी लिनक्स को पता लग जाता है कि अच्छा ये ना क्या है, ये संजय यूज़र जो है ये बेसिकली क्या करना चाहता है, ये इस कमांड को तो रन करना चाहता है लेकिन ये रूट की परमिशन से रन करना चाहता है। तो फिर बेसिकली रूट देखता है, अच्छा ये तो सूडोर की फाइल सूडोर्स की लिस्ट में है ही, तो इसको परमिशन दे दो और करने दो। इस तरीके से सूडो कमांड काम करता है। इसलिए जब भी आप सूडो कमांड को पहली बार रन करोगे ना टर्मिनल में, तो वो आपसे पासवर्ड मांगेगा आपका और तभी रन होगा। जैसे मैं यहाँ से वापस जाके संचय यूज़र में बदलता हूँ और मैं यहाँ पे देखो सूडो अपडेट लिखूँ तो होगा क्या, सूडो ऐप अपडेट अगर मैं लिखूँ तो अब यहाँ पे देखो अभी डायरेक्टली काम कर गया क्योंकि हमने सूडो ऑलरेडी इसको बोल दिया था एक बार। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार यहाँ पर लेट्स से बंद करता हूँ, ठीक है, और फिर से खोलता हूँ। एंड नाउ लेट्स सी, मैं एक बार सूडो कमांड टाइप करता हूँ, सूडो ऐप अपडेट। तो यहाँ पे देखो मेरे से सीधा पासवर्ड बोल रहा है, पासवर्ड फॉर संचय, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक बार पासवर्ड डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं पासवर्ड डालूंगा उसके बाद यहाँ पे मेरा काम वापस से शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली हाउ द थिंग्स आर वर्किंग एंड हाउ एक्चुअली द थिंग्स आर गोइंग। ये अपडेट होना शुरू हो गया है, अपग्रेड हमने किया नहीं, डायरेक्टली अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और ऐसे ऐसे करके मतलब सूडोर्स ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने बिकॉज आपके पास आपके घर की सारी परमिशन है, तो लेट्स से आपने एक लिस्ट मेंटेन कर ली कि मेरे घर में
किस किस के पास सारी परमिशन रहेगी, या कौन कौन वो बंदा है जो मेरा नाम यूज़ करके या मेरी सिफारिश यूज़ करके आगे अपना काम निकलवा सकता है। काइंड ऑफ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास जो सूडोअर हमने समझ लिया। तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो डॉलर सिंबल आपको देखने को मिल रहा है, ये तभी देखने को मिलता है जब आप नॉन रूटेड यूज़र होते हो, ठीक है। बट जबकि आप रूटेड यूज़र हो, लेट्स से अगर आप रूटेड यूज़र हो, आप रूट अकाउंट हो, है ना, तो अल्टीमेटली आपको हैश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हैश देखने को मिल गया तो इसका मतलब आप रूट हो, ठीक है। अगर डॉलर देखने को मिल रहा है जिसका मतलब कि आप रूट अकाउंट नहीं हो, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो यहीं से पता लग रहा है कि यहाँ पे देखो यहाँ संचय लिखा ही है। तो जब यहाँ संचय लिखा है, ठीक है, और जब इधर संचय ऑलरेडी लिखा है तो फिर इधर तो पता लग ही रहा है ना कि रूट अकाउंट नहीं है, तो बिल्कुल पता लग रहा है। लेकिन जब आप चीज़ों को हैक करते हो और समझते हो, तो हैक करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इस तरीके का प्रॉम्प्ट नहीं मिलता, या आपको इस तरीके का प्रॉम्प्ट नहीं मिलता। ये जो बहुत अच्छे सुंदर से प्रॉम्प्ट है ना यहाँ पर जो आप देख रहे हो, पूरा सिस्टम हैक करने के बाद आपको कभी ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं मिलेंगे सुंदर से, आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लिटरली देयर वुड बी अ इनविजिबल टर्मिनल, कुछ इस तरीके का टर्मिनल होगा कि कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ समझो कुछ इस तरीके का टर्मिनल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप मान लो ये भी ना लिखा हुआ हो, और उसके बाद अगर आप ls टाइप कर दोगे तो आपका आउटपुट भी आ जाएगा, राइट। आप किसी फोल्डर में जा भी पाओगे, बट अल्टीमेटली देयर वुड बी नथिंग विजिबल। अब उस टाइम पे पता नहीं लगता कि ये एक्चुअली है क्या। इज दिस अ रूट यूज़र, इज दिस नॉन रूट यूज़र। अगेन यू कैन टाइप who am I कमांड चेक करने के लिए कि who am I कमांड से कौन सा यूज़र है वो चेक करने के लिए आप डाल ही सकते हो। बट अल्टीमेटली कई बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ विजिबल नहीं होता, सिर्फ आपको डॉलर सिंबल या फिर जो प्रॉम्प्ट सिंबल है ये विजिबल होता है हैक करने के बाद मशीन को। तो ये जो सिंबल है इससे ही पता लग जाता है कि हम रूट अकाउंट है या नहीं है, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए लिनक्स के अंदर जाने से पहले, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जाके कि ये लिखा क्या है या कैसे है, समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेन मुद्दा है इसका। तो इस वाली लिनक्स में भी इन्होंने सेम चीज़ कर रखी है। यू कैन सी यहाँ पे लोकेशन है, टिल्ड साइन मेरा होम फोल्डर बता रहा है, काली यूज़र का, काली @काली है ये कायदे से, राइट। बट अल्टीमेटली बिकॉज इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको सुंदर दिखा रखा है, कूल दिखा रखा है, तो वो बात अलग हो गई। उसके साथ साथ यहाँ पर बेसिकली अब कुछ भी आप यहाँ कर सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे हमने कल फाइल्स बनाई थी, है ना, कुछ फाइल्स हमने यहाँ बनाई थी, इन्हीं फाइल्स को ले लेते हैं। तो इन्हीं फाइल्स को यहाँ पे लेते हैं और ये अपना जो है टर्मिनल इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और चलते हैं अपने होम फोल्डर के अंदर, होम फोल्डर के अंदर हैक वाला फोल्डर खोल लेते हैं। और ये फाइल्स हमने उस दिन कल बनाई थी। तो ये जो फाइल्स हमने बनाई थी, ये फाइल्स हमने टच कमांड से बनाई थी। सिंपली हम टच करके कितनी भी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने किया टच, ये कमांड मैंने टाइप किया था। तो अब देखो मैंने सिंपली फाइल्स बना दी थी। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ स्पेस लिया, ठीक है, और ये स्पेस से ऑटोमेटिकली समझ गया कि भैया ये जो फाइल है ये अलग अलग है। मतलब ये पहली फाइल, ये दूसरी फाइल, ये तीसरी फाइल, ये चौथी फाइल, ये समझ गया अपने आप। अब आप बोलोगे कि कोई एक ऐसी फाइल कैसे बनाऊँ जिसके नाम में ही स्पेस हो। मान लो मेरे को एक फ़ाइल बनानी है जिसके नाम में संचय सिंह आता हो। अब संचय और सिंह के बीच में स्पेस डालना है, तो उसके लिए आप डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर लो। संचय सिंह ऐसे मैंने बोला, देखो स्पेस के साथ फाइल बन गई। इसको रिमूव करना है, अगर फाइल को डिलीट करना है तो डेल कमांड नहीं होता है, इसमें rm कमांड होता है। rm के साथ यहाँ पे लिख दो संचय, और वही मतलब आपको बेसिकली डबल कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा। सो संचय सिंह यहाँ पे मैंने लिख दिया, एंटर, फाइल डिलीट हो गई। तो rm कमांड से फाइल को डिलीट कर दिया, टच कमांड से फाइल को क्रिएट कर दिया। फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir सैम्पल फोल्डर बनाना है, बन गया जी। सैम्पल फोल्डर हटाना है, rmdir सैम्पल। तो ये 4 कमांड्स है सिंपली, ठीक है। और चारों कमांड कितने सिंपल है। फाइल बनाने के लिए टच, फाइल डिलीट करने के लिए rm, फोल्डर बनाने के लिए mkdir, फोल्डर डिलीट करने के लिए rmdir, ठीक है। बहुत सिंपल कमांड है। कहीं भी गूगल पे जाओगे, लिखोगे बेसिक लिनक्स कमांड, आ जाएंगे सामने, ठीक है। बाकी अगर मेरे को फाइल के अंदर लिखना है, ठीक है, लेट्स से ये 2.java फाइल है, इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कुछ, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया है इसको, ठीक है। डबल क्लिक करके मेरे पास माउस पैड नाम का नोटपैड जैसा सॉफ्टवेयर आ गया। अब इसके अंदर मैं आराम से बेसिकली अपना जो भी कोड लिखना है लिख सकता हूँ अपना जावा का। बड़ी सिंपल सी बात है। बाकी फॉन्ट बड़ा कर लो, छोटा कर लो, स्क्रोल से, वही सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ सिस्टम ओवर हियर। द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे ना अभी भी माउस का यूज़ हो रहा है।
मतलब आप सोचो, आप पूरे टर्मिनल में काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन कीबोर्ड, और फिर जब फाइल को एडिट करने की बात आए तो आपको फाइल ढूंढ के डबल क्लिक करनी पड़े, कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब हर बार आप ऐसे सामने नहीं होते, आप हर बार फाइल फोल्डर ऐसे नहीं खोल लेते डायरेक्टली जैसे GUI में मैंने खोला है। कई बार आपको ऐसी फाइलें भी एडिट करनी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा किसी फोल्डर के अंदर होती है ना। उस केस में बेसिकली मेरे को GUI तो नहीं मिलेगा। अब GUI जब नहीं मिलेगा तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा, मुझे चाहिए एक ऐसा कमांड या फिर एक ऐसा एडिटर जिसको मैं टर्मिनल में ही खोल पाऊँ। तो उस एडिटर को हम लोग एक्चुअली नैनो नाम से जानते हैं। नैनो नाम का एडिटर है, राइट। यहाँ पे करना कुछ नहीं होता, नैनो लिखना होता है और उसके आगे फाइल का नाम लिखना होता है। नहीं तो नैनो की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं माउस पैड भी लिखूंगा ना तो देखो माउस पैड में खुल जाएगी सेम फाइल, माउस पैड 2.java मैंने लिखा, सेम फाइल माउस पैड में खुल गई। तो काली या किसी भी लिनक्स में कोई भी चीज़ करना इतना आसान है कि आपको कमांड का नाम देना है या फिर आपको प्रोग्राम का नाम देना है और फिर अपनी फ़ाइल देनी है। तो प्रोग्राम का नाम फाइल, तो क्या होगा, इस प्रोग्राम के अंदर ये वाली फाइल इनपुट हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे माउस पैड 2.java लिखा है तो इसकी जगह मैं नैनो पे खोलूँगा, इसको नैनो इज़ मच बेटर। तो मैंने नैनो 2.java खोला और अल्टीमेटली नैनो कुछ इस तरीके का दिखता है मेरे को। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। सो नैनो कुछ इस तरीके का मेरे को दिखता है और नैनो इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। मतलब कोई इतना ज़्यादा ये रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। और ये नीचे आपको हेल्प मेन्यू दिखा रहा है, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे नीचे ना शॉर्टकट्स दिखा रहा है या फिर कौन से कमांड से आप क्या कर सकते हो ये दिखा रहा है बस आपको। तो अल्टीमेटली यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो नैनो है बेसिकली ये तो इसके अंदर आप अगर काम करने बैठोगे तो यहाँ पे ये जो कैरेट सिंबल बना है, CARET कैरेट, मतलब जो शिफ्ट के साथ 6 आप दबाते हो तो बेसिकली आता है ना, ऐसे जोर सिंबल या ऊपर की तरफ एरो बना हुआ सिंबल आता है। तो इसका मतलब लिनक्स में होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल G दबाओगे तो हेल्प खुल जाएगा, कंट्रोल X दबाओगे तो एग्जिट हो जाएगी, कंट्रोल O दबाओगे तो फाइल के अंदर लिख देगा, कंट्रोल W दबाओगे तो वेयर है, मतलब फाइंड, कुछ फाइंड करना हो तो, देन रिप्लेस कंट्रोल स्लैश से कंट्रोल R फाइल को रीड कर देगा, कंट्रोल K से कट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। अब मान लो इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। जावा का कोड लिख लेते हैं। तो जावा का कोड के लिए लेट्स से क्लास मेन, और यहाँ पर आ जाएगा आज हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर आ जाएगा हमारे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग आर्क्स, एंड यहाँ पर हमारा एक और ब्रैकेट खुलेगा, लेट्स से system.out.println, ताकि इनपुट हमारा नेक्स्ट लाइन में आए, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है जावा में जब आपको एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखना हो। C++ में भी था थोड़ा सा बड़ा, बट हाँ इसके अंदर थोड़ा इस तरीके से, राइट। सेव करते हैं फाइल को, और जैसे ही मैंने सेव किया कंट्रोल O दबाया, सेव कर दिया, कंट्रोल X से बाहर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं नैनो 3.py 3.python, इसके अंदर चलते हैं। पाइथन इज प्रीटी सिंपल, कुछ नहीं करना, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो कितना ही सिंपल है पाइथन में, सिर्फ इतनी सी चीज़ से हमारा काम हो गया। और मैंने यहाँ पाइथन में हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अगेन मैं कंट्रोल O टाइप करूँगा, ये मेरे से पूछेगा कि क्या इसी फाइल में सेव करना चाहते हो किसी और में, मुझे सिर्फ एंटर दबाना है एंड कंट्रोल X दबाना है। तो 3 स्टेप काइंड ऑफ प्रोसेस है सेव करने के लिए, कंट्रोल O एंटर और कंट्रोल X से बाहर, ठीक है। PHP में भी लिख लेते हैं, जैसे ही PHP लिखूंगा इसका भी डेटा चेंज हो जाएगा, इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। PHP के लिए सिंपली मुझे यहाँ PHP लिखना है, उसके बाद यहाँ एको लेट्स से हेलो वर्ल्ड, एंड इसको बंद कर देते हैं और फिर PHP को बंद कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मेरा काम हो गया। अगेन सेव कंट्रोल O और कंट्रोल X से बाहर। स्क्रिप्ट लिखनी है 5.sh, सिंपल। इसके लिए मुझे क्या करना है, 5.sh में आते हैं। sh फाइल्स वो होती है जो स्क्रिप्ट फाइल्स होती है बेसिकली, जिससे हम कोई भी स्क्रिप्ट लिख पाए या फिर हम चीज़ों को ऑटोमेटिकली रन करा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5.sh खोली, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेरे को shebang लगाना पड़ेगा। shebang इज़ माई हैश, वेयर इज़ माई हैश, इसको shebang बोलते हैं। और उसके बाद /bin/bash अगर आपको bash की स्क्रिप्ट चाहिए, zsh अगर आपको zsh की स्क्रिप्ट चाहिए, मेरे को bash की चाहिए तो मैं bash की ले लूँगा, राइट। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर फिर मैं कोई भी कमांड रन कर सकता हूँ, जैसे ls या cd, मैं कुछ भी लिखूँगा ना तो वो ऑटोमेटिकली कमांड की तरह काम कर जाएगा। जैसे मैं एको से तो यहाँ डिस्प्ले करा सकता हूँ, जैसे प्रिंटिंग ls
कमांड नाउ, राइट, और नीचे ls लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ls कमांड को रन कर देगा। ठीक है, इसको भी मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे कुछ इस तरीके का बन गया। बाकी txt फाइल तो txt फाइल ही होती है, इसके अंदर आप क्या ही लिखोगे, मतलब हेलो कुछ भी लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अ सैम्पल फाइल। ठीक है, एंड वी आर जस्ट लर्निंग दिस काली लिनक्स। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके का मैंने कुछ लिख दिया इसके अंदर, कंट्रोल ओ कंट्रोल एक्स से बाहर। इवन आप किसी नॉर्मल फाइल जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं है उसमें भी जाकर कुछ भी लिख सकते हो, एंड बूम लिख दिया। ठीक है, तो वो भी txt फाइल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप डेटा लिख सकते हो, एंड इस तरीके से हमारा सारा काम चलता है। हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू आई नो क्वाइट लॉट ऑफ लैंग्वेजेस राइट नाउ। आई कैन, मैंने गिना नहीं कभी, बट हाँ सारी ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे काम हो जाता है, दैट आई नो। बाकी आगे चलते हैं। C++ की फ़ाइल को कंपाइल करना है काली या किसी भी लिनक्स के अंदर, सिंपली उसके लिए आपको चाहिए G++, राइट, दैट इज़ द कंपाइलर फॉर C++, एंड देन द नेम ऑफ द फाइल, एंड देन यू नीड टू गिव एन आउटपुट ओवर हियर। तो यही कमांड जो हमने कल रन किया था, इस तरीके से हम कर सकते हैं। -o करके एक फ़ाइल बन जाएगी। जिन्होंने C++ पढ़ी है उन्हें पता है, विंडोज़ में भी जब आप अपनी फ़ाइल को रन करते हो तो एक exe फाइल जनरेट हो जाती है, और वो बेसिकली आपको आउटपुट दिखाती है। तो ये वैसे ही एक exe फाइल है जो हमें आउटपुट दिखाएगी। ठीक है, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ये मेरी आउटपुट फाइल आ गई। उसके बाद 2.java, इसको रन करने के लिए, आउटपुट फाइल को रन करने के लिए सिंपली / करना है, /output। अभी / का मतलब क्या है, देखो लिनक्स में ना कोई भी चीज़ बेतुकी नहीं होती। ठीक है, दो चीज़ें होती है, समझाता हूँ। डबल डॉट का मतलब है पिछला फोल्डर। ठीक है, मैंने ये बोला कि आप cd करके फ़ोल्डर चेंज कर सकते हो, है ना। cd करके आप लेट्स से हैक फोल्डर में आ गए, जैसे मैं यहाँ हैक फोल्डर में हूँ। अब मुझे हैक फोल्डर से पिछले फोल्डर में वापस जाना है, कैसे जाऊँगा, डॉट करके मैं बोलूँगा cd डॉट, मेरे को पिछले फोल्डर में ले जाएगा। तो हमेशा किसी भी लिनक्स में डॉट का मतलब पिछला फोल्डर होता है, और सिंगल डॉट का मतलब करंट फोल्डर होता है। ठीक है, डबल डॉट का मतलब पिछला फोल्डर, सिंगल डॉट का मतलब करंट फोल्डर, और स्लैश का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ के अंदर। तो सिंगल डॉट के अंदर मतलब करंट फोल्डर के अंदर एक आउटपुट नाम की फाइल है, उसको रन करना है। राइट, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग ओवर हियर, कि करंट फोल्डर के अंदर एक आउटपुट नाम की फाइल है, भाई उसको रन करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने ये लाइन बोली है यहाँ पर। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको रन कर दूँगा ये करंट फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको रन किया तो हेलो वर्ल्ड मेरा आ गया आराम से। राइट, देन जावा को अगर मुझे रन करना है, तो जावा रन करने के लिए मेरे पास सिंपली क्या होना चाहिए, जावा रन करने के लिए मेरे को सिंपली यहाँ पर आकर के जावा सी करना है, विच एक्चुअली कंपाइल्स द जावा फाइल, और मैं यहाँ पे 2.java दे दूँगा। जावा सी नॉट फाउंड, तो जावा सी हमारे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। एंड लेट्स बेसिकली सी जावा के कौन कौन से कमांड्स हैं हमारे पास। ओके, आई गेस वी डू नॉट हैव जावा इंस्टॉल्ड, और उसके लिए मेरे को यहाँ जावा डाउनलोड करनी पड़ेगी। बट हाँ, जावा सी जब आप लिखते हो तो बेसिकली कंपाइल हो जाता है आपका कोड, और जैसे ही आपका कोड एक बार कंपाइल हो गया तो ये आपको अगेन आपका आउटपुट आपको दे देता है सिंपली। ठीक है, पाइथन रन करने के लिए मेरे पास पाइथन होनी चाहिए। राइट, तो उसके लिए आई विल हैव पाइथन 3। तो पाइथन 3 मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद मुझे पाइथन फाइल दे देनी है 3.py, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। PHP चलाने के लिए आपको सर्वर चाहिए, PHP डायरेक्टली चलती नहीं है, तो उसको भी अभी स्किप करते हैं। वी हैव टू क्रिएट अ सर्वर फॉर दैट, एंड देन अल्टीमेटली दिखा तो सकता ही हूँ मैं, लेट मी शो यू। सो आई विल बी क्रिएटिंग अ सिंपल सर्वर, लेट्स जस्ट सिंपली कॉपी आर फाइल। सो इसके लिए हमारे कुछ ऐसे कमांड्स इस्तेमाल होंगे जो शायद अभी आपको थोड़े अजीब लगेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, बट आई विल स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कमांड यूज़ किया। कॉपी कमांड से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। CP इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर कॉपी। राइट, एंड अल्टीमेटली मेरे को कौन सी फाइल कॉपी करनी है, 4.php मैं कॉपी करना चाहता हूँ। और कहाँ कॉपी करनी है, मेरे को ये करनी है var www/html के अंदर, इस फोल्डर के अंदर मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैंने बिल्कुल वही चीज़ लिखी है, कॉपी द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। राइट, कॉपी
सोर्स डेस्टिनेशन। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। एंड सूडो मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, बिकॉज वैर वाले फोल्डर के अंदर आप खाली रूट एक्सेस होता है, तो खाली रूट ही वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता है कुछ, बट बिकॉज आई वांट टू डू दैट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सूडो ले लिया, बिकॉज आई एम जस्ट आस्किंग फॉर सम परमिशन कि भाई मेरे को थोड़ी सी परमिशन दे दे अपनी रूट वाली, ये फाइल मुझे कॉपी करनी है, क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस होगा नहीं वैर का डायरेक्टली, तो रूट के पास तो एक्सेस है, तो मैं रूट से परमिशन उधार मांग रहा हूँ। ठीक है, एंटर किया, पर पासवर्ड पूछेगा, डाल दिया। अगर कोई आउटपुट नहीं आया, फाइल सक्सेसफुली कॉपी हो गई। आउटपुट आया, लेकिन किसी भी लिनक्स में एक गोल्डन रूल है कि अगर आउटपुट नहीं आया कमांड का, तो मतलब चीज़ चल गई या काम हो गया। अगर आउटपुट आया तो कोई एरर ही आया होगा, उसको जाकर चेक कर लो। ठीक है, इसके बाद हम अपना खोल लेते हैं, लेट्स से यहाँ पर सर्वर, तो sudo service apache to start, let's wait। हमारा apache to start हो गया। एंड अल्टीमेटली अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सिंपली जाना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ आकर के मेरे को सिर्फ लोकल होस्ट लिख देना है और मैं पहुँच जाऊँगा अपने सर्वर के अंदर। राइट, सो यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट और मैं आ गया अपने apache 2 के सर्वर में। इसके अंदर अगर मैं जाऊँगा 4.php जो हमने डाली थी, तो ये हेलो वर्ल्ड काम कर गया। राइट, सो PHP इज़ ऑल्सो वर्किंग ओवर हियर। अपाचे 2 को अपाचे को नहीं हो सकता, क्योंकि अपाचे का सेकंड वर्जन है जो काली के अंदर इनबिल्ट आता है। अपाचे 1 जो है, जो अपाचे का पहला वर्जन था, वो भी इंस्टॉल्ड है, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड वर्जन और बहुत सारे सिक्योरिटी फ्लॉज है उसमें। तो अपाचे 1 भी आप यूज़ कर सकते हो, बट अपाचे 2 इज़ मच मोर बेटर एंड गुड प्रैक्टिस अगर आप अपाचे 2 ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपाचे 2 ही आजकल यूज़ होता है इंडस्ट्री में, कोई भी डेवलपमेंट वेबसाइट में। ठीक है, सो वी हैव दैट थिंग। एंड अभी आगे चलते हैं, 5.sh को रन करना है, तो उसके लिए मेरे को पहले परमिशन देनी पड़ेगी 5.sh को। तो इसको परमिशन दे देते हैं chmod। chmod इज़ द कमांड जब आपको परमिशन देनी होती है, तो chmod। और बिकॉज अभी आप देखो ls करके अगर मैं दिखाऊँ ना, तो देखो ये सारी फाइल्स हैं, है ना, जो अभी इस फोल्डर में है, बट ls के साथ अगर मैं -l करूँ तो मेरे को एक्चुअली यहाँ पे सारे फाइल्स की परमिशन भी देखने को मिलती है। मतलब देखो cpp 1.cpp की ये परमिशंस हैं, 4.php की ये परमिशंस हैं, बट 5.sh की परमिशंस देखो ना कुछ ऐसी है। ठीक है, मतलब ये जो पहले वाले rw है और डैश है, दिस इज़ एक्चुअली rwx फॉर माई यूज़र, मतलब काली यूज़र। ये वाला rwx है मेरे ग्रुप के लिए और ये वाला rwx है मेरे अपना जो अदर्स है उनके लिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे। तो दिस इज़ फॉर माई दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ फॉर माई क्या कह सकते हैं ग्रुप, एंड दिस इज़ फॉर द अदर्स। तो बेसिकली आप देखो कि मेरे को खुद ही एग्जीक्यूटेबल परमिशन पे डैश लगा हुआ है। तो RW तो है, रीड और राइट तो है मेरे को, बट मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा रहा X। तो मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन चाहिए, तभी ये रन कर पाएगा। और ये जो आउटपुट बना था ना C++ का, ये ऑलरेडी X परमिशन के साथ आया था, तो इसलिए रन हो भी गया था। बट स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मेरे को यहाँ पर X परमिशन चाहिए। अब तो X परमिशन को मंगाने के लिए मैं सिंपली chmod लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा +X। chmod का मतलब है चेंज मॉडिफिकेशन, देन +X फॉर एग्जीक्यूटेबल परमिशन, और उसके बाद मैं लिख दूँगा 5.sh, जो भी मेरी फाइल का नाम है, एंटर करूँगा, हो गया। अब इसको फिर से अगर मैं दिखाऊँ तो यू कैन सी द चेंज, मेरे पास X आ गए तीनों जगह। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर कि सर मैं नहीं चाहता कि ये X उनको भी मिले, मेरे ग्रुप को या फिर अदर्स को, तो देर आर अदर थिंग्स फॉर डैट। राइट, उसके लिए कुछ एक अलग कमांड है, वो भी बाद में बात कर सकते हैं कल या आने वाले टाइम में। राइट, बट दिस इज़ एक्चुअली द ईजिएस्ट वे हाउ यू कैन डू दैट, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। तो RWX मेरे को मिल गई, परमिशंस मिल गई। परमिशंस मिलने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे ./5.sh कर दूंगा। राइट, एंड अल्टीमेटली नाउ इफ़ आई रन इट, तो यू कैन सी मेरा कमांड रन हो गया, मतलब मेरी स्क्रिप्ट रन हो गई। अब देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिखा था echo print ls, और ये ls का आउटपुट। ठीक है, ls का आउटपुट देखने को मिल गया मेरे को। तो अल्टीमेटली यू कैन सी कैट कमांड होता है। कैट कमांड का मतलब होता है किसी फाइल को व्यू करना। बेसिकली अगर आप फाइल का कंटेंट व्यू करना चाहते हो डायरेक्टली स्क्रीन पे विदाउट डायरेक्टली गोइंग ओवर देयर, तो मैं यहाँ पे किसी भी फाइल का व्यू कैट कमांड से कर सकता हूँ। तो ये देखो फाइल का जो कंटेंट था वो क्या था, echo printing ls कमांड ना हो तो ये तो echo हो गया, बट उसके साथ साथ जो ls कमांड था उसका आउटपुट भी यहाँ पे आ गया।
राइट। सो स्क्रिप्ट्स आर एक्चुअली मेड कि आप एक्चुअली यहाँ पे कमांड्स को ऑटोमेट कर पाओ लिनक्स के, और सिर्फ कमांड्स ही नहीं, पूरी की पूरी लिनक्स को ऑटोमेट कर सकते हो। इवन यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स भी लिख सकते हो और किसी को भेज के आराम से हैकिंग भी कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैश लैंग्वेज को सीखना, किस तरीके से बैश लैंग्वेज काम करती है, इस लैंग्वेज को बैश कहते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, और इसको यूज़ करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट, सो दैट इज़ अबाउट लिनक्स एंड दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। कुछ बेसिक कमांड्स हमने देखे, कॉपी आपने देखा, आपने कट पेस्ट करना है तो उसके लिए यू कैन यूज़ MV, बट इट वर्क्स इन अ वेरी सिमिलर मैनर। नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, एंड अल्टीमेटली बहुत सारे और कमांड्स हैं जो मैं 1 घंटे में तो कवर नहीं कर सकता, बट या आई वुड सजेस्ट टू प्रैक्टिस ऑल दीज कमांड्स योर सेल्फ वंस, एंड देन जस्ट गो अहेड विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स सो दैट यू वुड बी एबल टू प्रैक्टिस इट फॉरवर्ड। कुछ करना नहीं है, गूगल पे जाओ, सिंपली लिखो बेसिक लिनक्स कमांड्स एंड यू विल बी एबल टू गेट ऑल द लिनक्स पॉसिबल कमांड्स ओवर देयर, राइट। सो प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड इन लिनक्स। आई नो 1 दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जाए, बट 1 घंटा लेके बैठोगे 1 दिन में तो अल्टीमेटली 2 से 3 दिन में सारे कमांड्स कवर अप कर पाओगे धीरे धीरे, ठीक है। सो दैट वॉज अबाउट टुडे। बाकी कोई डाउट है किसी का तो चैट्स में एक बार डाल देना, राइट। एंड अदरवाइज नए हो, हैकर्सविला के बारे में नहीं पता, यू कैन जस्ट check about us in the community section, or you can just check the website over here. We are a training company और हम लोग ट्रेन करते हैं. I am one of the lead trainer of Hackersvilla and one of the co-founder for the company as well, right? So 2 courses हैं हमारे पास. बेसिक कोर्स है जो बग बाउंटी लवर्स के लिए है. बग बाउंटी सीखना चाहते हो बिल्कुल आ जाओ. 2 महीने में 1.5 महीने में बग बाउंटी ऐसी सिखा देंगे कि आप जाके अच्छे से बग्स निकाल पाओ, पैसे कमा पाओ. एडवांस्ड कोर्स है जिसके अंदर VAPT से लेकर बग बाउंटी से लेकर WAPT, एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग से लेकर रिवर्स इंजीनियरिंग, फोरेंसिक सब कुछ कवर होता है. 3 से 4 महीने का कोर्स होता है. लाइव चलेगा. ऑफलाइन आना है दिल्ली में ऑफलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ जाओ. टोटली योर विश. प्राइजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो अपने अकॉर्डिंगली राइट जैसे भी है वैसे आज आ सकते हो. अगेन EMI इज़ ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, मिनी बैचेस रहते हैं. 4 से 5 लोगों से ज़्यादा का बैच रहता नहीं है. क्लासेस लाइव रहती हैं, डिस्कॉर्ड पे रहती हैं. ना गूगल मीट पे हम करते हैं, ना ही डिस्कॉर्ड जूम पे करते हैं. बिल्कुल इनफॉर्मल इन्वायरमेंट है, कम्युनिटी टाइप है. एंड अल्टीमेटली वंस यू पे यू आर अ लाइफ टाइम मेम्बर, राइट. सो ये चीज़ें हैं. उसके साथ साथ जैसे आप ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी और चीज़ें जो आपके लिए फ्री हो जाती है, जैसे कि बूट कैम्प का मास्टर क्लास, जो पेड बूट कैम्प मास्टर क्लास होती है उनका एक्सेस आपको फ्री मिल जाता है. एंड जर्नल्स आपको फ्री मिल जाती है हमारी साइट से. मेंटोर सपोर्ट रहता है, राइट. देन सारे रिसोर्सेज, सारे टूल्स फ्री मिल जाते हैं. उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो फ्री मिल जाती हैं अल्टीमेटली. सो या इट्स टोटली योर विश. अगर आपको कुछ वैसे जाना है, कोई 1-to-1 में फंसे हुए हो, मतलब कुछ ऐसा फंसे हुए हो कि कॉलेज में लेट्स से 3rd या 4th ईयर में हो, कुछ और करना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ अगर 1-to-1 चाहिए कॉल कर लो कभी भी. एक बार व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछ लेना करने से पहले, नहीं तो एक 1-to-1 स्लॉट बुक कर दो. एंड अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू एंड वी वुड बी एबल टू गेट इन टच विद यू एंड हैव अ 1 hour or 30-minute session with you, right? So that was about today and that is about Hackersvilla. कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में ज़रूर डाल देना, राइट. यहाँ कोई क्वेश्चन अभी है तो यू कैन आस्क इट राइट नाउ. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, क्वेश्चंस पूछने के लिए, आने के लिए. ये सेशंस 15 नवंबर तक डेली 6 से 7 बजे फ्री रहेंगे, चलते रहेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ, राइट. सो नो इश्यूज इन दैट. लेट्स मीट टुमारो and yes, that is from my side.